तो यहाँ देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ देख सकते हैं, इफ सपोज वी हैव टू वेव्स y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t plus phi, where a1 and a2 are individual amplitudes and phi is the phase difference between the waves at an instant when they are meeting at point I1 and I2 are intensities of the individual waves. Okay, so let's see the constructive interference. So what is constructive interference? Actually, meaning of constructive interference is the uh, uh, about the maximum intense point. So let's see what is this. You can see here, when the waves meet at a point with the same phase, constructive interference is obtained at that point. Same phase means phase difference between the two waves must be zero at a point. Then at that point the brightness will be the maximum and the interference that is take place at that point is known as constructive interference. So second point is the phase difference between the waves at point of observation, that is phi is equal to 0, or you can say phi is equal to 2 and pi like. Okay, so this is the phase difference, but generally we are taking 0. And third point is the path difference between the waves at the point of observation is delta is equal to n lambda, but it should be also 0. Actually, in the case of the constructive interference, in general we can take the phase difference like 2 n pi and the path difference like n lambda. Okay, but for n is equal to 0 it should be lambda, and phase difference is also 0. So if you take for so the angle 0, then 2 pi, then 4 pi, 6 pi, etc., these are the phase differences for the constructive interference, and 0, that is path difference, then lambda, then 2 lambda, then 3 lambda. Okay, so these are the path differences for the same means constructive interference. So now you can see the resultant amplitude at the point of observation will be maximum if a1 is equal to a2 and a is equal to 0. Minimum is 0, and maximum for a1 is equal to a2 is equal to a naught, that is 2a. So minimum can be 0 and maximum can be 2a if a1 and a2 are equal. This is the formula for intensity at any point. Okay, so if you look at about the equation, you can see here the I max is equal to under root I1 plus under root I2 whole square, and if this condition is satisfied, then you can write I max is equal to 2 I naught. Okay, so you can see here maximum intensity is 2 times I naught. Now you can see here the resultant amplitude. After the superposition of the given waves, resultant amplitude is given by a is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Okay, this is very important equation, and this is equation for the resultant amplitude. Okay, so for the interfering waves, y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin a2 cos omega t. The phase difference between them is 90 degrees. So the resultant amplitude a is equal to under root a1 square plus a2 square. Hence resultant intensity. So you can see here, we know that the intensity is directly proportional to the square of the amplitude. This one is very important equation. You can see here
This equation is most important. So you can write I1 is equal to some constant into A1 square. Similarly, I2 is equal to some constant into A2 square. So I is equal to some constant into A square, where K is proportionality constant. Hence, from the formula of the resultant amplitude, we get the following formula for the resultant intensity, that is I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference. So you can see here the term under root 2 I1 I2 into, sorry, the term 2 under root I1 I2 cos phi is called the interference term. This term is interference term actually. This part is interference term, and for incoherent interferences this term is 0, so resultant intensity is I1 plus I2 and it is constant. So if source is not coherent source means uh, if this part is 0, so you can see here I is equal to I1 plus I2. So let us now understand what is actually the coherent sources, and then we will study about the interference of light. So let's see coherent sources. So the source of light which emits continuous light wave of the same wavelength, same frequency and same phase having a constant phase difference is called coherent source. ठीक है, तो ये कोहेरेंट सोर्स की डिफिनीशन है कुछ कंडीशंस के साथ. आप देख सकते हैं ऐसे लाइट सोर्सेज जो कि कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स जो इमिट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फेज की, और या फिर उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, उनको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है. तो यहाँ देख सकते हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी coming from two coherent sources travel in a medium in their same direction simultaneously, then due to their superposition at the same point intensity of light is maximum while at some other points it is minimum. This phenomena is called the interference. So student, what is meaning of interference? So let's see with the example. Suppose this one is light source, it emits lights up. Okay, so when two waves of exactly same frequency travel in a medium, so let's see about the two wave. If this one is one wave and this one is second wave, if two waves of exactly same frequency coming from the source travel in a medium, so you can see these two are traveling in a medium in the same direction, you can see these two are traveling in the same direction simultaneously, then due to their superposition, so due to their superposition at some point intensity of light is maximum while at some other point intensity is minimum. So at some point the intensity, if you are plotting graph intensity versus distance, you will get like this. So at some point intensity is maximum, at some point it is minimum, you can see. Okay, this phenomena is called interference. So you can plot the graph like this. At some point it is maximum and then it is minimum, maximum, minimum, maximum, like this. So this phenomena is actually known as the interference of light. Okay, so क्या होता है, देखिए जब किसी मीडियम में दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो क्या होता है मीडियम के कुछ पॉइंट्स पे ब्राइटनेस लाइट की मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पे जो ब्राइटनेस है वो मिनिमम हो जाती है. इसी फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. बट इसके लिए कंडीशन है कि दोनों वेव्स जो हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो या तो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. ठीक है, और उनके बीच फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो या कांस्टेंट होना चाहिए और वो दोनों सेम डायरेक्शन में चले. अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाए तो क्या होता है, मीडियम में इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो ब्राइटनेस है वो कुछ पॉइंट पे बढ़ जाती है, कुछ पॉइंट पे कम हो जाती है. इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अगर एग्जांपल्स की बात करें इंटरफेरेंस के, तो आपने एग्जांपल्स में देखा हुआ है
जैसे कि आपने कलरफुल सोप बबल्स देखे हैं, कलरफुल सोप बबल्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखते हैं। फ्रिंजेस जो आप यंग्स मॉडलेस एक्सपेरिमेंट में, सॉरी यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो आपने देखा हुआ है फ्रिंजेस, वो फ्रिंजेस भी इंटरफेरेंस की वजह से बनती हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इनको आप ध्यान से याद रखेंगे। एक वाटर बॉडी है या कोई बकेट के अंदर वाटर है, उस पर अगर ऑयल गिर जाए तो वो कलरफुल दिखता है। तो ये सब इंटरफेरेंस के एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें इंटरफेरेंस की, तो आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस के टाइप्स में आपको मिलेगा, दो टाइप के इंटरफेरेंस मिलेंगे। एक होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। When the waves meet at a point with the same phase, constructive interference is obtained at that point with maximum light. Okay, then second condition is phase difference between the waves at point of observation is 0 या फिर 2n pi. Third, the phase difference between the waves at the point of observation is n lambda. Now next one is resultant amplitude at a point of observation will be maximum for this, and if a1 is equal to a2 is equal to a naught, it is equal to 2 a naught. And finally resultant intensity at the point of observation will be maximum. These are the about constructive interference. Now let's see about destructive interference. So when the waves meet a point opposite phase, destructive interference is obtained at that point minimum light, or you can say there is absence of light. Then for this phi should be equal to like this 2n plus 1 into pi, this like this, and path difference delta is equal to 2n minus 1 lambda by 2 odd number, or you can say odd multiple of lambda by 2. Now you can see this one is the path difference. Now the resultant amplitude at the point of observation will be minimum for a mean a1 minus a2, or it is equal to 0. And finally you can see resultant intensity at the point of observation will be minimum if I mean is equal to I1 plus I2 minus 2 under root I1 I2. So I mean is equal to under root I1 minus I2 whole square. So if you take I1 is equal to I2 is equal to I0, then I mean is equal to 0. So if I1 I2 is not equal, so it is not 0. So it depends on the intensities of the I1 and I2. If these two are equal, then definitely it is 0. So now you can see here very important derivation. The resultant intensity due to two identical waves. So for two identical waves I1 and I2, you can write like this: I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. Now for if I1 is equal to I2 is equal to I0, so you can write here I is equal to 2 I0 plus 2 under root I0 into I0. Finally you get 4 I0 into cos square phi, and you can write this equation like this one. So you can write this like this. Okay, so this one is very important derivation, you should
remember this one is very important. Okay, so we will complete the topic further in next class. सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इसको शॉर्ट में कहते हैं YDSE. देख सकते हैं यहाँ पे आप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये देखिए, ये लिखा हुआ है YDSE, वाई यंग्स DSS स्लिट एक्सपेरिमेंट. YDSE बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, तो इसको अच्छे से जानना होगा कैसे इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है. तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है. तो पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो देखिए इंटरफेरेंस क्या है. सपोज ये लाइट सोर्स है, इसको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं और 2 होल कर देते हैं, पिन होल, बहुत ही छोटे होल. यहाँ से लाइट वेव्स ऐसे निकलती हैं, यहाँ से लाइट वेव ऐसे निकलती है. क्योंकि ये दोनों लाइट वेव एक ही लाइट सोर्स से निकल रही है, इट मीन्स इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा, और इनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एक जैसे होंगे, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि होल इसी डायरेक्शन में है. तो ये इंटरफेरेंस के सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं आपको. फर्स्ट ये कंडीशन है कि जो जो वेव्स हो उनके बीच फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो. सेकंड है दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें. थर्ड, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो. फोर्थ, उनका एम्पलीट्यूड या तो सेम हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो. तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे ये फॉलो कर रही हैं दोनों वेव. और इस तरीके से जब ये वेव्स इस मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो ये इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं. तो इंटरफेरेंस क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जब ये दोनों वेव इस मीडियम में इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो ये दोनों आपस में मिलती हैं डिफरेंट जगह पे. तो जहाँ पे ये सेम फेज़ में मिलती हैं वहाँ पे ये ब्राइट, मतलब कि ब्राइट स्पॉट बनाती हैं, ब्राइट कर देती हैं उस पोजीशन को जहाँ पे ये सेम फेज़ में मिलती हैं. लेकिन जहाँ पे ये अपोजिट फेज़ में मिलती हैं वहाँ पे ये डार्क कर देती हैं उस पॉइंट को. तो इसी ब्राइट डार्क जो ये फिनोमेना बनता रहता है, एनर्जी एक तरीके से जहाँ पे ब्राइट बनता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, और जहाँ पे डार्क होता है वहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं आप. तो इसी फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो देखिए एक बार फिर से ध्यान समझिए, क्या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है. एक लाइट सोर्स है इसमें, जिसको एक बॉक्स के अंदर बंद किया जाता है, और इस बॉक्स को एक तरफ से 2 पिन होल किए जाते हैं. इन दोनों से लाइट वेव्स निकलती हैं जो कि इंटरफेरेंस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, और मीडियम में इंटरफेरेंस होता है. कुछ पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, कुछ पे डार्क बनती हैं. ठीक है, तो ये जो जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लाइट बढ़ जाती है, एनर्जी हाई हो जाती है, उसी को कहते हैं ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, और जहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है, लाइट कम हो जाती है, उसको कहते हैं डार्क फ्रिंज. तो अगर आप पैटर्न देखें तो आपको पैटर्न इस टाइप का दिखता है फ्रिंजेस के लिए स्क्रीन पे ऐसे. यहाँ पे ये कंप्लीट डार्क है, ये जो, ठीक है, ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, ऐसा ही देखने में मिलेगा. बट ये ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखाई देता है, इसको आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है. फिर ये देखिए, ये ब्राइट दिखेगा, फिर यहाँ पे डार्क, मतलब कि रेड से जो ये ब्लैक दिखेगा आपको, ऐसा रियलिटी में दिखता है, लेकिन ये आपको नेकेड आइज से नहीं दिखता, इसको ध्यान से देखना होगा. फिर यहाँ पे देखिए ये ब्राइट बनेगा, फिर ये डार्क, ये कंप्लीट डार्क होगा. थोड़ा सा ये यहाँ पे पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, ये कंप्लीट डार्क बनता है, एक फाइन स्ट्रक्चर बनता है, डार्क, एकदम डार्क स्ट्रिप सी आपको दिखती है, ब्लैक स्ट्रिप यहाँ पे भी. ठीक है, और बीच बीच में वाइट स्ट्रिप. तो इसी को कहते हैं फ्रिंजेस. तो यहाँ पे रियलिटी में क्या हुआ होगा, जहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रही है, वेव्स यहाँ पे सेम फेज में मिली होंगी, इसलिए यहाँ पे एनर्जी बहुत ही हाई है और ब्राइट फ्रिंज बन जाती है. ये देखिए जहाँ पे रेड है, ये कलर किया गया, इसको एक्चुअल में ब्लैक करना था. यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो वेव्स हैं वो अपोजिट फेज में मिली होंगी, और यहाँ पे डार्क फ्रिंज बना होगा. तो यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब देख लेते हैं इसका अरेंजमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ. मोनोक्रोमेटिक मीन्स होता है ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ हो. एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम लैम्प,
जो है सोडियम लैम्प जो होता है वो एक तरीके से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं, हालांकि वो भी 100% नहीं है मोनोक्रोमेटिक, उसमें भी दो वेवलेंथ होती हैं सोडियम में, बट फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं। और भी होती हैं जैसे कि ग्रीन कलर की लेज़र लाइट है, होती है, आपने देखा होगा रेड कलर की। इन सभी लेज़र लाइट में भी काफ़ी वेवलेंथ अवेलेबल है, बट फिर भी इनको वन कलर की जो लाइट्स होती हैं उनको मोनोक्रोमेटिक ले लेते हैं। बट एक्चुअल मोनोक्रोमेटिक की जो डिफिनीशन है उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए, बट फिर भी वन कलर लाइट को यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक माना जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब है कि यहाँ पे वन कलर का कोई लाइट सोर्स यूज़ किया गया होगा, या तो कोई लेजर बीम होगी, या फिर आप सोडियम लैम्प यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ फॉल ऑन टू नैरो स्लिट्स S1 and S2 which are very close to each other acts as two coherent sources। तो देखिए कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, वही कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके बीच फेज डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है, और उनसे दोनों से जो लाइट निकलती है उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। तो इसका मतलब ये सोर्सेज क्या होते हैं, ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनको कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, बट कोहेरेंट सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसे सोर्सेज जो इंटरफेरेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, आप कहेंगे ऐसे सोर्सेज जिनके बीच जो लाइट निकल रही है, लाइट वेव्स, उनके बीच फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट है या ज़ीरो है, और उनसे सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है, सेम वेवलेंथ की लाइट निकलती है, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। तो ऐसी सोर्सेज को कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। So when two waves coming from two coherent sources S1 and S2 superimpose on each other, an interference pattern is obtained on the screen। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे दिखता है, ये इसी के बारे में भी अभी बात किया था हमने। तो यहाँ देखिए फिर क्या है, इन YDSC मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट alternate bright and dark bands obtained on the screen, these bands are called fringes। तो देखिए इसी के बारे में अभी बात किया था आपके कि जब YDSC एक्सपेरिमेंट होता है तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या होता है, ऐसे दिखता है एक्चुअल में स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको डार्क सा दिखेगा, ऐसा एक पट्टी सा या स्ट्रिप कह सकते हैं, फिर उसके बाद ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क इस टाइप का, फिर ब्राइट दिखेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो हम लोग इसको इस फॉर्म का भी कर सकते हैं, अगर इसको ब्लैक लें और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, तो अगर आप ये देखें स्क्रीन है, यहाँ पे अगर ऐसे बनाएं इसको एकदम से, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मोबाइल का जो स्क्रीन है, आप इसको स्क्रीन मानिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा, ऐसा ही एक्चुअल में दिखता है, ये और भी फाइन होगा, ये लाइन जो स्ट्रेट नहीं दिख रही है, ये देखिए फिर ऐसे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो बाउंड्री लाइन है, एक्चुअली में उसमें बाउंड्री लाइन नहीं मिलेगी आपको, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक बार इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ किया जा सकता है, और इसको थोड़ा सा अगर ऐसे बनाएं, देखिए यहाँ पे एक हमने बना दिया बॉक्स जैसा, इसको फिल कर दिया। ठीक है, ये डार्क बैंड हो गया, सॉरी 1 मिनट। ये देखिए ये इस टाइप का हो गया। ठीक है, यहाँ बीच में गायब होगा, कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो वेव्स हैं वो अपोजिट फेज में मिलती हैं। ठीक है, अपोजिट फेज का मतलब पाई फेज डिफरेंस के साथ, और यहाँ पे जो फेज है वो है ज़ीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे पाई, वैसे सिर्फ पाई नहीं, आप बोल सकते हैं अगर देखें तो पाई, उसके बाद 3 पाई, ऐसे करके जो भी चीज़ें आप लेंगे सभी को यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग।
ठीक है, ऑड नंबर में। और ऐसे ही 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सभी सेम फेज के लिए एंगल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। एक्चुअल में इस तरह की कंडीशन है, ये स्लिट्स हैं आपका और स्क्रीन यहाँ पे। तो ये स्लिट जो है इसके प्लेन से यहाँ तक की डिस्टेंस को कैपिटल डी लेते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। तो देखिए ये है सोर्स, इसको एक बॉक्स के अंदर एक्चुअल में रखा जाता है। यहाँ पे उस तरीके का नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे दो पिन होल, पिन होल का मतलब बहुत ही फाइन होल किए जाते हैं। जब इन दोनों से लाइट पास करती है, सामने स्क्रीन रखी होती है, स्क्रीन पे सेंटर पे ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यंग्स डबल स्लिट में सेंटर ऑलवेज ब्राइट क्यों बनता है, ये क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डार्क पॉइंट्स हैं, ये फोर्थ डार्क, थर्ड डार्क, सेकेंड डार्क, वन डार्क, इसके बीच बीच में देखिए ब्राइट है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, और यहाँ पे डार्क है। तो यहाँ पे फ्रिंजेस अल्टरनेट बनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस अल्टरनेट बनती हैं कि कैसे बनती हैं। तो आपको बताना होगा अल्टरनेट बनती हैं और सभी की जो थिकनेस होती है वो सेम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंटरफ्रेंस के एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा नहीं होता है कि फ्रिंजेस जो है वो सेम थिकनेस की बनती हैं, बट यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सभी फ्रिंजेस की थिकनेस सेम होती है। ये भी क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑलवेज ब्राइट क्यों है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी थिकनेस सेम होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो आपके सिलेबस में सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन एक्चुअल में इंटरफ्रेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चीज़ें आपको मिलेंगी। बट यहाँ पे पहले आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट जो कि इंटरफेरेंस से रिलेटेड हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसी टाइप का पैटर्न है। बट यहाँ पे जो ये लाइट शेडोज दिख रहे हैं, ये एकदम ब्राइट चमकीले होंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आप ब्राइट देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये दोनों वेव्स सेम फेज में मिले होंगे। देखो वेव तो हर डायरेक्शन में चलेगी ना, वेव ऐसा नहीं कि एक लाइन की तरह चलती है। वेव कैसे चलती है, यहाँ से पूरा फैलती है जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें। तो यहाँ से जो लाइट वेव चलेगी वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में एक्चुअल में ऐसे ऐसे फैलती चली जाती हैं। और ये वाली वेव्स भी, तो ये देखिए ये मिलते हैं जहाँ जहाँ पे इस मीडियम में। तो इस मीडियम में जब ये दोनों वेव, दोनों इससे और इससे ये जो वेव मिलते हैं, तो अगर वो सेम फेज में मिलते हैं तो ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं, और अपोजिट फेज में मिलते हैं तो डार्क बनाते हैं। और किसी फेज में मिले तो उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, हमको सिर्फ देखना है कि वो सेम फेज में मिले कि अपोजिट फेज में मिले। तो सेम फेज वाले ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं और अपोजिट फेज वाले बनाते हैं डार्क फ्रिंजेस। और किसी भी फेज में मिलने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वो फ्रिंज के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये डायग्राम के बारे में आपको बता दिया गया है। अब इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट बिकॉज द सेंट्रल पोजिशन फाई, फॉर सेंट्रल पोजिशन फाई इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0। सेंट्रल फ्रिंज ऑलवेज ब्राइट इसलिए बनती है क्योंकि दोनों से ये सेम डिस्टेंस पे होती है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा और फेज डिफरेंस फाई दोनों 0 होते हैं। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यही कंडीशन होती है ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन दोनों स्लिट से इस वाले की पोजीशन ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पे होती है, जिससे इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम हो जाता है।
जिससे पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है और यहाँ पे दोनों फ्रिंजेस सेम फेज में मिल जाती है और बना देती हैं ब्राइट फ्रिंज। ओके, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि सेंटर ब्राइट क्यों होता है। ओके, इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है। तो सेकेंड पॉइंट है द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू द स्लिट इज मोर ब्राइट देन ड्यू टू पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू स्लिट इज मोर ब्राइट देन ड्यू टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट से ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद जो पॉइंट है थर्ड वो ये है कि if the slit width are unequal and the minima will not be complete dark for very large width uniform illumination occur। if slit width are unequal, जो कि दोनों स्लिट है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, द मिनिमा विल नॉट बी कंप्लीट डार्क, तो मिनिमा जो होता है वो कंप्लीटली डार्क नहीं बनता, उसमें भी थोड़ी बहुत इंटेंसिटी चली जाती है। फॉर वेरी लार्ज विड्थ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन अकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ़ वन स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विथ रेड लाइट एंड अदर स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विथ ब्लू लाइट, नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्लिट। तो अगर दोनों स्लिट से अगर अलग अलग कलर के, मतलब कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट्स आती हैं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ द टू कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज द सेंटर ब्राइट डार्क इंस्टीड ऑफ ब्राइट वन। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे देखिए दो जो फ्रिंजेज है उसको हमने कैसे बनाया, इफ़ टू कोहेरेंट सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, अब यहाँ पे एक मिरर रख दिया है तो इसके अंदर भी आपको ये सोर्स दिखने लगती है, तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइट आती है ऐसे, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है, तो ये दोनों मिलते हैं मीडियम में। तो ये लाइट और ये लाइट एकदम एक जैसे ही होती हैं, क्योंकि इसी लाइट से यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों लाइट, एक तो ये और इसकी ये इमेज इसके अंदर बन रही है, वर्चुअल है, ये दोनों मिल के बन जाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। बट इस केस में जो बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो डार्क बनती है, यहाँ पे ब्राइट नहीं बनती, जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये ब्राइट बनती है। तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तो आपको इंटरफेरेंस यहाँ पे पढ़ाया गया, बट आपको ये नहीं पता होगा कि इंटरफेरेंस का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इंटरफेरेंस। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपको मज़ा नहीं आएगा इसको जानने में। क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ स्लिट है, यहाँ पे डार्क ब्राइट बन गया, तो इससे हम क्या कर लेंगे, हमें इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे डार्क ब्राइट बन गया तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सी कहानी है और इसका यूज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इंटरफेरेंस जो है वो उसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस, ये ब्राइट डार्क बनने से क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं अभी कि क्यों करते हैं ऐसा। तो